Well, so we'll begin with Aristotle's Poetics today. Okay. Any idea about Aristotle's Poetics? Any of you? Yes, sir. Yes, please. What do you know about that? Sir, a brief I have read while Hmm. preparing for PPT. Hmm. So there are, I think, 19 chapter. Sorry, 16. Two were of comedy and 14 were of drama, and I think total were 21 or 23 chapters. And I think it is incomplete. Hmm. It's incomplete. And the focus was on a tragedy. Hmm. Okay. Anything else? Yes, sir. Sir, I think it is written, but it seeks to address the different kinds of poetry, and it's like this, and the division of a poem into component parts. And Aristotle defines poetry as Hmm. a medium imitation, Hmm. and so on. Hmm. Okay, go on. Is that all? And Hmm. yes, sir. Sir, like poetry very broadly, including epic poetry, tragedy, and comedy, and even some kinds of music. You can say Aristotle's poetry. All right. In very brief about Aristotle. So, as you know that he was a Greek philosopher, and he had been a student of Plato. प्लेटो के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा. विच बुक हैज ही रिटन? प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी है? द फेमस बुक फॉर स्पेशली फॉर अस. Republic. Okay. So he has founded Lyceum. We will talk about Lyceum. What is it? Okay. और अरिस्टोटल की जो फेमस बुक है जिससे हमारा कंसर्न है वो है पोइटिक्स उनकी. ओके, विच वॉज रिटन इन 330 BC. Aristotle has written on wide range of areas. He has written about rhetoric, logic, politics, ethics, natural sciences, many things. But for us it is rhetoric, okay, which we will deal with here. Rhetoric, do you know rhetoric? Okay, we'll discuss Yes, it. sir. All right. So we talked about that he was the founder of Lyceum. Okay. So Lysias is a temple, okay, which was dedicated to Apollo Lysias. You see, if you see the current trend of UGC NET question papers, nowadays very little factual questions are asked. Questions, the kind of questions that are asked in UGC NET, they are based on your understanding of the topic. Okay, so though of course these kind of factual questions are important, but they are less in number in papers. Okay. Now this Lysias is known for its peripatetic school of philosophy. ये point important है, peripatetic school of philosophy. Now ये philosophy कौन सी है? Peripatio एक टर्म है, peripatio, जिसका मतलब होता है मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर. तो अरिस्टोटल के जो भी फॉलोवर्स हैं उनको बोला जाता है पेरिपेटेटिक. ठीक है. और दोज हु फॉलो हिज फिलोसफी दे आर दोज आर द डिसाइपल्स ऑफ अरिस्टोटल. तो ये लोग क्या करते थे, दे यूज टू गिव लेक्चर्स, दे यूज टू हैव डिस्कशंस एट वन प्लेस एंड देन मूव टू अनदर प्लेसेस. ओके. तो ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर प्लेस था जहाँ पर वो अपनी टीचिंग्स को डिस्कस करते थे या उनकी जो भी फिलोसफी थी उसको डिस्कस करते थे. दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट्स व्हाई दिस स्कूल इज कॉल्ड पेरिपेटेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी. Now, this poetics was written in response to Plato's views on poets and poetry in his Republic. ठीक है. रिपब्लिक में प्लेटो ने आइडियल स्टेट की बात की है और उसमें उन्होंने बोला है कि पोइट्स शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट. ये तो आपने स्टेटमेंट सुना ही होगा.
राइट। उन्होंने जिस जिस आइडियल स्टेट की कल्पना की है ना, उससे पोइट्स को बाहर निकल जाना चाहिए। एंड दिस ही हैज सेड इन रिपब्लिक चैप्टर 10th। आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. सो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्लेटो का, ठीक है। सो व्हाई डिड ही से दिस दैट पोइट्स मस्ट नॉट बी देयर इन हिज आइडियल स्टेट? बिकॉज ही सेज दैट ऑल आर्टिस्टिक क्रिएशन is a form of imitation. So poetry is an artistic creation, right? And poetry is the form of imitation. Imitation, another name of imitation is mimetic or mimetic theory. Okay. तो अरिस्टोटल कहते, प्लेटो का कहना था कि any artistic creation is twice removed from reality, twice removed from truth. एक सेकेंड। What is happening? Oh. Yes. Twice removed from the truth. Any artistic creation or anything which is the result of imitation or mimetic process, that is twice removed from reality. ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, उनका एक है अलेग्री ऑफ केव। इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? अलेग्री ऑफ केव, एनी आइडिया? No, sir. अच्छा ठीक, तो इसके लिए हमें आपको एक वीडियो दिखाना पड़ेगा। सो थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। हिंदी में है वो, 5-7 मिनट का है, देखना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू नॉट रिलाई ओनली ऑन वन रिसोर्स। मतलब केवल इतना नहीं कि जो मैंने पढ़ा दिया बस इससे आपका काम हो जाएगा। आई रिफर टू सम रिसोर्सेस, सम वेबसाइट, सम बुक्स, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, नेट में जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो अब मैं 1 घंटे में आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकता हूँ, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यू विल हैव टू गो थ्रू, you will have to do a lot of reading for that. Okay, I'll refer the resources. All right. So watch that video and then we'll come back to Aristotle. Just a minute. This video is taking a little time. Yeah. Let's see here. ने अपनी बुक द रिपब्लिक में सॉक्रेटिस और उनके स्टूडेंट प्लेटो ने अपनी आपको आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. अच्छा ठीक, somebody wants to join. तो ये वीडियो देखने के बाद में we'll come back to Aristotle. Just a minute, somebody wants to join. Let me check. Okay. Welcome Jagrati. Good morning, sir. Very good morning. So I'm playing a video on Plato's Allegory of Cave. Okay, so watch it and then we'll come back to Aristotle. बुक द रिपब्लिक में सॉक्रेटिस और उनके स्टूडेंट ग्लूकॉन के बीच हुई कॉन्वर्सेशन का जिक्र किया है, जिसमें सॉक्रेटिस ग्लूकॉन से कुछ लोगों का ग्रुप इमेजिन करने के लिए कहते हैं जो बचपन से एक गुफा में कैद हैं। उनके हाथ, पैर और नेक सब चेन से बंधे हुए हैं, इसलिए वो एक जगह पर फिक्स हैं। वो लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ उनके सामने जो दीवार है उस पर बनने वाले शैडोज़ को देखते आए हैं। सॉक्रेटिस कहते हैं कि उनके पीछे कुछ हाइट पर एक आग जलती रहती है। उस आग और इन लोगों के बीच एक सड़क है जिस पर लोग आते जाते रहते हैं। उनके हाथों में सामान होते हैं जो उन प्रिजनर्स के सामने की दीवार पर शैडोज़ बनाते हैं। प्रिजनर्स इन शैडोज़ को सच समझते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी वो ये शैडोज़ देखते आए हैं, इसलिए उनके लिए यही सच है। समय के साथ प्रिजनर्स ने इन शैडोज़ को नाम भी दे दिए हैं।
एक दिन एक प्रिजनर अपनी चेन से फ्री हो जाता है। वो गुफा में आने वाली लाइट के पीछे जाता है और गुफा से बाहर आ जाता है। ये प्रिजनर अपनी ज़िंदगी में पहली बार गुफा से बाहर निकला था। उसकी आंखें सूरज की रोशनी झेल नहीं पाती क्योंकि वो तो सिर्फ अंधेरे का आदी था, पर धीरे धीरे उसकी आंखें खुद को सनलाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। अपनी पूरी ज़िंदगी ये प्रिजनर सिर्फ शैडोज़ देखता आया था, पर अब इन चीज़ों को उसने रियल में देखा और उसे बताया गया कि केवल ये चीज़ें ही असली हैं और शैडोज़ एक धोखा। उसने ये मानने से इनकार कर दिया क्योंकि शैडोज़ उसे क्लियर दिखते थे। ये सब उसे काफ़ी पेनफुल लग रहा था। वो जल्द से जल्द अपनी गुफा में वापस जाना चाहता था, पर धीरे धीरे प्रिजनर ने नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख लिया। उसने देखा कि ये दुनिया कितनी कलरफुल है। रात में तारों को चमकते हुए देखा। उसे ये सब अनरियल सा लग रहा था क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था। फिर एक दिन उसने डायरेक्टली सन को देखा, उन सभी चीज़ों का एकमात्र सोर्स जो वो देख चुका था। सन उसे गुफा के डार्क डेज और उसके साथियों की याद दिलाता है और अब वो उनकी सोच से बिल्कुल भी कनेक्टेड महसूस नहीं करता। इसलिए अपनी नई दुनिया के बारे में बताने के लिए वो प्रिजनर गुफा में वापस जाता है। अब गुफा में अंदर जाते वक्त उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उस अंधेरे का आदी तो रहा नहीं, इसलिए अंदर पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके साथी सोचते हैं कि बाहर की दुनिया ने उनके दोस्त को अंधा और कमज़ोर बना दिया है। जैसे ही वो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में बताता है, वो सभी उसे ज़बरदस्ती रोक देते हैं और उसकी बातों को सुनने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि उस इंसान को मारने की कोशिश करते हैं जो उन्हें फ्री करना चाहता है। प्लेटो ने बताया कि इस एलिगरी के ज़रिए ह्यूमन लाइफ को समझा जा सकता है। ज़िंदगी में हमें जो भी दिखता है या दिखाया जाता है, हम उसे बिना सोचे पूरा सच मान लेते हैं। उन इवेंट्स की तह तक जाने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि उन पर आंख बंद करके बिल्कुल उन प्रिजनर्स की तरह बिलीव कर लेते हैं। ये सोचने तक के लिए नहीं रुकते कि क्या पता इन शैडोज़ को तोड़ा मरोड़ा या बदला गया हो। हम भी उन प्रिजनर्स की तरह शैडोज़ से भरी दुनिया में कैद हैं। ये सब इतना कंफर्टेबल लगता है कि हम इनसे फ्री नहीं होना चाहते क्योंकि हमारे लिए यही दुनिया सच है। पर फिर भी सच देखा और ढूंढा जा सकता है, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना लगे। अपने आसपास के इल्यूजन से वाकिफ़ होने की काबिलियत हम सभी रखते हैं, ठीक उस प्रिजनर की तरह। रियलिटी के साथ सामना काफ़ी पेनफुल हो सकता है, जैसे उस प्रिजनर ने पहली बार लाइट देखकर महसूस किया था, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। ये आपकी बीती हुई ज़िंदगी को झूठ प्रूफ कर देती है और इस सिचुएशन में इंसान का वजूद खतरे में आ जाता है। ट्रूथ ऑलवेज हर्ट्स। हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं जो लगातार बदलता रहता है, इसलिए यहाँ ट्रू नॉलेज पाना इम्पॉसिबल है। सीजन्स बदलते हैं, बिल्डिंग्स चूर चूर हो जाती हैं, ग्रेट सिविलाइजेशंस आती हैं और जाती हैं, ह्यूमंस और सभी लिविंग थिंग्स मर जाते हैं। इवन प्रेजेंट कंडीशंस भी लगातार धोखा देती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी सच नहीं। प्लेटो कहते हैं इस लगातार बदलती और धोखा देने वाली दुनिया के पीछे एक परमानेंट रिलायबल दुनिया है जिसे प्लेटो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहते हैं। वो कहते हैं फॉर्म्स जो नॉन फिजिकल होती हैं एक्यूरेट रियलिटी को दिखाती हैं। वो मानते हैं कि फॉर्म्स ही होती हैं जो ट्रू नॉलेज बता सकती हैं। जैसे आप एक सर्कल इमेजिन कीजिए। अब आपने जो इमेजिन किया है वो उस सर्कल का परफेक्ट फॉर्म है। जब आप उसे ड्रॉ करेंगे तो वो उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना आपने सोचा था, क्योंकि ये ड्राइंग उस परफेक्ट इमेजिनेशन की कॉपी है। सर्कल की जो पिक्चर आपने इमेजिन की थी वो एक परफेक्ट फॉर्म है और जो ड्रॉ किया है वो उसका इम्परफेक्ट वर्जन है। प्लेटो कहते हैं कि फॉर्म्स एक आइडिया है जो सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है। फॉर्म्स सिर्फ जियोमेट्री तक ही सीमित नहीं है। प्लेटो कहते हैं जो भी चीज़ आप देखते हैं उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है। जैसे
women, men, tree, cloud, apple, dog, house, कुछ भी हो सकता है। मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मूवीज़ में या एडवर्टाइजमेंट्स या और भी बहुत सारी डेली लाइफ की चीज़ों में जो दिखाया जाता है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। हम उसे सच मानकर खुद Yes. Did you understand the allegory of cave? हेलो। Yes, sir, up to some limit. अच्छा ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। उन्होंने ये कहा था प्लेटो ने कि फॉर एग्जांपल आप कारपेंटर हैं, ठीक है, तो आपने चेयर को देखा। आप सपोज पेंटर हैं, ठीक है, तो आपने चेयर को देखा या आपने चेयर को विजुअलाइज किया, तो आपने उसको पेंट कर दिया, ठीक है। तो क्या एग्जैक्ट जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जो आपने फॉर्म देखा है, क्या एग्जैक्ट वैसे ही आप उसको पेंट कर सकते हैं? प्लेटो का कहना है कि वो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में उस पेंटिंग को किसी कारपेंटर ने देखा तो उसने एक चेयर बना दी। अब एक तो रियलिटी से आप कहाँ से दूर हुए? जब पेंटर ने पेंटिंग की किसी चेयर की तो आप रियलिटी से दूर हुए, ठीक है। उसके बाद में जब पेंटर की पेंटिंग को देख करके कारपेंटर ने चेयर बनाई तो क्या हुआ? यू आर ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ, राइट, जैसे वो केव में हुआ था, राइट। तो वो कहते हैं कि जो पोइट्स होते हैं ना, दे मस्ट बी बैनिस्ड फ्रॉम द आइडियल स्टेट, क्योंकि उनका जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है दैट इज द फॉर्म ऑफ इमिटेशन। वो तो कॉपी करते हैं। और अब पोइट ने चेयर को देखा, पोइट ने कारपेंटर की चेयर को देखा और उसने एक पोएम लिख दी उस पर, ठीक है। अब वो पोएम कैसी हो गई? थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रुथ। ओके, तो इस प्लेटो का ये था कि जो मिमेटिक थियरी है, जो आर्टिस्टिक क्रिएशन है, ये ट्रुथ पर बेस्ड नहीं है। दिस इज फार फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में अरिस्टोटल ने लिखा था पोइटिक्स। गॉट इट? Okay, sir. Yes, sir. ऑलराइट। तो प्लेटो ने क्या कहा था? इफ यू लुक एट हिज डेफिनेशन ऑफ मिमेटिक आर्ट, ही सेज मिमेटिक आर्ट देन इज एन inferior thing cohabiting means living together with an inferior and engendering inferior offspring। वो कहते हैं मिमेटिक आर्ट क्या है? वो एक inferior thing है। कॉपी करना, किसी को इमिटेट करना, ये inferior thing है। और उसके साथ क्या रहता है? inferior thing ही रहती है। मतलब पोइट ने कारपेंटर के द्वारा बनाई हुई चेयर को देखा, ठीक है, अब उसको क्या कर रहा है? इमिटेट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? ही इज डूइंग एन एन इंफीरियर जॉब, राइट, ठीक है। और वो कारपेंटर ने जो बनाया था उसको पेंटिंग को देख करके बनाया था। ही ऑल्सो डिड एन इंफीरियर जॉब। सो इंफीरियर थिंग इज लिविंग विद एन अनदर इंफीरियर थिंग। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका ऑफस्प्रिंग क्या होगा? उसके बच्चे कैसे होंगे? वो भी इंफीरियर होंगे। वेल, टू इंफीरियर थिंग्स आर लिविंग टुगेदर, सो ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? मतलब इट इज काइंड कॉन्सेप्ट लाइक दैट ऑफ मैरिज, ठीक है। दो बदमाश लोग हैं, मतलब वो लेडी भी बदमाश है और जो मेल है वो भी बदमाश है, दोनों ने शादी कर ली, तो उनका जो बिहेवियर होगा, ठीक है, वो उनके बच्चों पर भी असर डालेगा। तो ऑफ स्प्रिंग्स भी उनके वैसे ही होंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स विच आर आर्टिस्टिक क्रिएशंस, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रुथ। This was the view of Plato. Now अरिस्टोटल ने क्या कहा मिमेटिक आर्ट के बारे में? ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा था कि सब कुछ इन्फीरियर है क्योंकि वो रियलिटी से या ट्रुथ से दूर हो जाता है जब भी आप कुछ भी कॉपी करते हैं। लेकिन अरिस्टोटल का मानना था कि द रीजन वाई वी एंजॉय सीइंग लाइकनेस इज दैट एज वी लुक वी लर्न एंड इन्फर व्हाट ईच इज फॉर इंस्टेंस एंड दैट इज सो एंड सो। प्लेटो का मानना है when we take birth, since from our birth we imitate the things
एंड इफ वी डू नॉट इमिटेट द थिंग्स वी विल नॉट डेवलप द रीजन। बच्चा अगर जिस फैमिली में पैदा हुआ है उनको अगर नहीं देखेगा, उसको इमिटेट नहीं करेगा, ठीक है, अपने उसके सोसाइटी में लोग कैसे बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उनको अगर वो इमिटेट नहीं करेगा तो विल द चाइल्ड बी एबल टू लर्न द लैंग्वेज? वो तो लैंग्वेज सीख ही नहीं पाएगा, राइट? क्योंकि लैंग्वेज इज द प्रोडक्शन ऑफ इमिटेशन एंड बिहेवियर इज द प्रोडक्शन ऑफ इमिटेशन। बच्चा क्या करता है, लोगों को देखता है कि लोग कैसे बोल रहे हैं, उसको वो इमिटेट करता है, उसके बाद प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई प्लेटो सेज द रीजन व्हाई वी एंजॉय सीइंग लाइकनेस। बच्चा एंजॉय करता है जब वो लोगों को देखता है, इमिटेट करता है, वो उनको एंजॉय करता है। क्यों एंजॉय करता है? बिकॉज वी लर्न एंड इन्फर, क्योंकि उससे वो सीख रहा होता है और समझ रहा होता है कि वॉट ईच इज, फॉर इंस्टेंस, कि जो कुछ भी है वो क्या है और कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जब वो बच्चा ये सीखता है कि कोई चीज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही है तो उसको वो प्रोड्यूस करने का ट्राई करता है। जैसे उसने पहला वर्ड सीखा ममा या पापा, ठीक है, तो उसने पहले उसके बारे में सुना होगा, राइट, उसको इमिटेट किया उसने और उसके बाद में ही ट्राइज टू प्रोड्यूस इट, ठीक है। तो प्लेटो का कहना है कि प्लेटो का कहना था कि ये इन्फीरियर है, इट मूव्स यू फ्रॉम द रियलिटी, राइट। लेकिन अरिस्टोटल का क्या कहना है? इट डेवलप्स द रीजन, इट गिव्स यू हैप्पीनेस। ऑलराइट, stop me whenever you think or you feel like explaining these things more in elaborate manner. Okay. Now Plato का कहना है कि this imitation or mimetic kind of thing takes us even further away from the truth and thus nothing good can come from it, ठीक है, क्योंकि वो inferior things are living together and then they produce inferior offsprings, तो इस वजह से इससे हमको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अरिस्टोटल का क्या मानना है? दिस इमिटेशन और मिमेटिक काइंड ऑफ थिंग इज इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब बचपन से ही होता है, पैदा होते ही होता है। तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो क्या करने लग जाता है? ही और शी ट्राइज टू इमिटेट व्हाट द पीपल इन हिज सोशल मिलियो आर डूइंग, राइट, एंड प्लेज एसेंशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। बिकॉज बच्चा इमिटेट करता है चीज़ों को और इसी वजह से वो और नॉलेज को डेवलप करता है। इफ अ चाइल्ड इज लेफ्ट और केप्ट इन आइसोलेटेड रूम, इफ he is not allowed to see anything, he won't be able to form the knowledge, right? Then Plato का कहना है कि poetry plays on the yes, do you want to say something? No, sir. Okay, he says poetry plays on the emotions and thus undermines the highest part of our soul. प्लेटो का कहना है कि पोइट्री जो है ना वो इमोशंस पे प्ले करती है, ठीक है, और इसी वजह से जो हमारा सोल का हाईएस्ट पार्ट है, व्हाट इज दैट? रीजन, ठीक है, तो उससे हमको दूर ले जाती है पोइट्री, ठीक है, जो लॉजिक है उससे हमको दूर ले जाती है। अरिस्टोटल कहते हैं व्हाइल पोइट्री डज इंडीड प्ले ऑन द इमोशंस, सो अरिस्टोटल एग्रीज विद दिस। प्लेटो के इस स्टेटमेंट से कि पोइट्री प्लेज ऑन द इमोशंस, अरिस्टोटल एग्रीज, बट ही डज नॉट एग्री विद व्हाट पॉइंट? दैट इट अंडरमाइंस द हाईएस्ट पार्ट ऑफ आवर सोल। इससे वो एग्री नहीं करते, वो कहते हैं इट डज सो इन अ वे दैट एनहांसेस आवर रीजनिंग। वो कहते हैं कि वो रीजन से हमको दूर ले जाती है। प्लेटो कहते हैं कि पोइट्री हमको रीजन से दूर ले जाएगी, ठीक है, लेकिन अरिस्टोटल क्या कहते हैं? अरिस्टोटल कहते हैं कि इट एनहांसेस आवर रीजनिंग, और कैसे? थ्रू कैथारसिस। कैथारसिस टर्म सुना है आपने? सुना ही होगा, आई बिलीव सो। यस सर। तो जागृति जी कैथारसिस एक्सप्लेन करिए प्लीज। आप तो जागृति, आर यू अराउंड? जागृति, आर यू अराउंड? ओके सीस, ऑलराइट। सो अच्छा, आप में से कोई भी करिए कैथारसिस। Yes, sir. Catharsis is something to arouse the emotions of fear and pity. राइट। तो आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें कोई विलेन है, अब विलेन ने जितने भी गलत काम किए हैं उसके बाद में उसको पनिशमेंट मिलता है। तो जो पनिशमेंट जब मिल रहा है उसको, तो वो ऑडियंस के अंदर क्या करता है? इट अराउजेज द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, और उसको बताता है, वो मतलब रियलाइज करता है ऑडियंस कि अगर हम भी ऐसे काम करेंगे
तो हमको भी ऐसी पनिशमेंट मिलेगा। तो आप वो ऑडियंस के अंदर क्या कर रहा है वो प्ले, वो मूवी क्या कर रही है, दैट मूवी इज एनहांसिंग द रीजनिंग, उसको बता रही कि क्या सच है क्या गलत है। सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. All right. Now coming back to this poetics. So its Latin name is De Poetica, and it has total 26 chapters. Uh, one of you was saying that it has only 21 chapter perhaps. Yes, sir. Okay. Clear. Okay. So it is especially about tragedy, especially. Okay. And the things that have been written on comedy, they are lost. By the time this poetics was written, there were 33 the 33 tragedies which were existing, others were lost. Okay, and they were written by Aeschylus, Sophocles, and Euripides. Now these tragedies, these 33 tragedies were performed in Athens twice annually, याद रखना है, twice annually at the first festival of in honor of Dionysus. Dionysus is the god of wine. Now आपको थोड़ा Dionysus के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा. Just a minute. Yes, sir. Yes. Oof, no. I wanted to play some other slide. Yes. We will discuss about this in detail when we will be talking about dissociation of sensibility and unification of sensibility. So there are two kinds of drives, Apollonian and Dionysian drives. Okay, and these two drives were popularized by Nietzsche in his work The Birth of Tragedy. ये important है कि ये drives की बात कहाँ पे की गई है, ठीक है। You know the things are interrelated. अब ऐसा नहीं कि आप अरिस्टोटल पढ़ रहे हैं तो आप नीचे को नहीं पढ़ेंगे या प्लेटो को नहीं पढ़ेंगे। अरिस्टोटल को किसी भी क्रिटिक को या पोइट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ से भी जो लिंक चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। Now these two kinds of drives. Now they were sons of Zeus. Okay, so Apollo is the god of the sun, of rational thinking and order, and appeals to logic. Okay. And Dionysus is the god of wine and dance. Okay, and Dionysus appeals to emotions and instincts. एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हु इज इन अपोजिशन टू डायनोसिस, तो आपको याद रखना है अपोलो। ओके, और व्हाट आर द टू ड्राइव्स, एक ड्राइव कौन सी है, इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स की है, दूसरी ड्राइव कौन सी है, लॉजिक की ड्राइव है, ठीक है। अब इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स की कौन सी ड्राइव है, इट इज रिलेटेड टू पोइट्री। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दैट, we'll discuss about in detail when we'll talking about the dissociation of sensibility. Just a minute, where was, yes, so ये जो ट्रेजिडीज थी ये परफॉर्म की जाती थी किसके किसके ऑनर में, डायनोसिस। डायनोसिस कौन था, द गॉड ऑफ वाइन। द गॉड ऑफ वाइन की ड्राइव क्या थी, क्या ड्राइव थी, इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स। Now poetics is related to art. Now art is of different types. Sculpture is art, poetry is art, dance is art, painting is art, right? Now here in poetics he is especially talking about the art of poetry. Okay, and this poetry is further divided into comedy, tragedy, epic, and dithyrambic hymns. Okay, so please do remember that all these things are the part of poetry for Aristotle. Okay. Now if you talk about tragedy, yes, Dithyrambic hymns. I'll come to this dithyrambic hymns. Okay, just wait. Okay, sir. Now we will talk about tragedy first. Tragedy
के बारे में आपको याद रखना है दैट इट डील्स विद द लॉफ्टी मैटर्स। लॉफ्टी मैटर्स मीन्स ऑफ डिग्निफाइड, ठीक है, उत्कृष्ट, while comedy deals with base matters. Okay, now ट्रेजिडी कहाँ से इवॉल्व हुई? ट्रेजिडी जैसे अभी मैंने बताया था उस टाइम पे 33 ट्रेजिडीज थी जो अवेलेबल थी, ठीक है, अदर्स वर लॉस्ट। तो कहाँ से इवॉल्व हुई ट्रेजिडी? जो अरिस्टोटल ने बताया है कि डिथेरेम्बिक हिम्स से इनका ये इवॉल्व हुई। और डिथेरेम्बिक हिम्स, यस Sir, I think dithyrambic hymns are those which are sing in the honor of Dionysus. राइट राइट, वो तो हम बता ही चुके हैं आपको, राइट। अभी और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इनको डायनोसिस गॉड के प्रेस में संग किया जाता था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संग बाई लार्ज खॉर, समटाइम्स फीचरिंग अ नरेटर, वन नरेटर। इस ये एग्जाम में आता है कि जो डिथेरेम्बिक हिम्स थी उसमें कितने नरेटर्स होते थे? एक ही होता था, वो भी समटाइम्स होता था, ठीक है। सेकंड एक्टर की किसने बात की है? ये याद रखना है, एस्किलस। ट्रेजिडी में सेकंड एक्टर की बात करने वाले थे एस्किलस, और सोफोक्लिस ने थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर? द ट्रेजिडी लॉफ्टी मैटर्स, डिग्निफाइड मैटर्स, कॉमेडी बेस मैटर्स। ट्रेजिडी का इवॉल्व कहाँ से हुई? डिथेरेम्बिक हिम्स से, जिसमें कभी कभी एक नरेटर होता था। सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले थे एस्किलस, एंड द थर्ड वन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोफोक्लीज। यस, नाउ बट डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर, ओके। Dithyrambics are the clearest example of poetry in which the poet is the only speaker. You see this, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, अरिस्टोटल ने बताया कि ये इवॉल्व कहाँ से हुई, क्या हुआ है, तो प्लेटो ने भी इसके बारे में बात की है एक्चुअली। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इस वजह से, बिकॉज पीपल विल टेक ऑन अरिस्टोटल, बिकॉज अरिस्टोटल हैज मोस्टली टॉक्ड अबाउट दिस डिथेरेम्बिक हिम्स, ओके। तो ये स्टेटमेंट, डिथेरेम्स आर द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोइट्री इन विच द पोइट इज द ओनली स्पीकर, ये प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा है, ओके। प्लीज डू रिमेंबर दैट। नाउ if we talk about epic versus tragedy, epic is narrative in narrative form while tragedy is in dramatic form. ये डिफरेंस याद करना रखना है आपको। epic is written only in 1 meter while tragedy is written in more than 1 meter. Okay. Now किस मीटर में epic लिखा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। किस में लिखा जाता है? डेक्टिलिक हेक्सामीटर में, याद रखेंगे, डेक्टिलिक हेक्सामीटर में लिखा जाता है एपिक, ओके। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हीरोइक हेक्सामीटर। मीटर के बारे में आप लोगों को पता है कुछ थोड़ा बहुत, जागृति को तो पता है, आई एम श्योर, यस। Yes, sir. पेंटामीटर, पेंटामीटर क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर, Yes, sir. 10 syllables जिसमें होते हैं। राइट राइट राइट। तो अभी जब वो पोइट्री जो भी पढ़ाएगा तो उसमें जो जब कोई रेटरिक पढ़ाएगा तो डिटेल में बताएगा। मैं थोड़ा डेक्टिलिक हेक्सामीटर के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एपिक एंड इट इज इन कॉन्ट्रास्ट विद ट्रेजिडी, बिकॉज ट्रेजिडी में मोर देन 1 मीटर होता है, ठीक है। तो डेक्टिलिक हेक्सामीटर को हीरोइक हेक्सामीटर भी कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 1 लॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाई 2 शॉर्ट सिलेबल्स। ये देखिएगा, ये लॉन्ग वाला है, ठीक है, और ये है शॉर्ट वाला, ठीक। अब फीट क्या होता है? हाउ मेनी फीट्स आर देयर इन एम्बिक पेंटामीटर? देयर आर 5 फीट्स ऑफ 10 सिलेबल्स, ठीक है। इसमें कितने फीट होंगे डेक्टिलिक हेक्सामीटर में? 12 feet. नो 1 2 3 4 5 एंड देन Sorry, तो 6 feet will be and 12 syllables. राइट, ओके। सो अब इसका जो फीट बन रहा है, जैसे पेंटामीटर में जो फीट बनता है वो बनता है 2 सिलेबल का, इसमें बनता है 3 सिलेबल का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फॉलोड बाई 2
वीक सिलेबल्स, ठीक है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो एपिक होता है वो डेक्टिलिक हेक्सामीटर में जनरली इस वजह से लिखा जाता है सो दैट कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से कनेक्टेड हो, बिकॉज बहुत ही वो लॉन्ग नरेटिव होता है तो चीज़ें आइसोलेशन में नहीं लिखी जाती हैं। और डेक्टिलिक हेक्सामीटर में एनजेबमेंट होता है। एनजेबमेंट सुना है? एनजेबमेंट Yes, sir. क्या होता है बताइए जल्दी से। Yes, sir. Where in one line the sense is followed on by the next line. राइट राइट The meaning is राइट not completed in one line. एग्जैक्टली। तो ये पॉसिबिलिटी किसमें है? डेक्टिलिक हेक्सामीटर में। इस वजह से इसमें डेक्टिलिक हेक्सामीटर ही यूज करते हैं। ओके, नाउ ट्रेजेडी की डेफिनेशन ये तो सभी ने पढ़ी है। आई बिलीव नथिंग इज टू एक्सप्लेन हियर। इट्स एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, complete and of a certain magnitude. What do we mean by magnitude here? That it is of certain length. Okay. In language embellished with every type of artistic ornament. Artistic ornament होते हैं मतलब figures of speeches है, prosody है, बहुत सारी चीज़ें। We'll talk about them in later. In the form of action. Action होता है not of narrative. ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। जब अरिस्टोटल ट्रेजेडी की बात करते हैं तो वो एक्शन की बात करते हैं, नरेशन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। और उनका जो लास्ट पॉइंट है जो उन्होंने टर्म किया है कैथारसिस है, जो कि चैप्टर 6 में यूज किया गया है, ठीक है। ओके, so there are 7 characteristics of tragedy according to Aristotle. One, it is mimetic, means it imitates the things. It is serious in nature. It tells a full story of an appropriate length, means of certain magnitude. It has rhythm and harmony, means it has poetic elements. Rhythm and harmony occur in different combination in different parts of tragedy. ठीक है, तो in almost all the parts of the tragedy you will have rhythm and harmony. It is performed rather than narrated. अभी हमने किसकी बात की थी? ये किसकी बात करते हैं? एक्शन नॉट ऑफ नरेशन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इट इज परफॉर्म्ड रादर देन नरेटेड। अब मुझे कोई आप एक ट्रेजेडी बताइए जो परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, नरेशन के लिए है केवल। कोई एक दो ट्रेजेडीज के नाम बताइए। Otho the Great by Keats. ओके, The Borders by Wordsworth. वेरी गुड। हालांकि बॉर्डर्स को परफॉर्म किया गया था बट पीपल से दैट इट इज फॉर नरेशन। हार्डी का है डायनेस्ट, Prometheus and हार्डी, Marvel. हाँ हाँ बिल्कुल, हार्डी का डायनेस्ट, ठीक है। ओके, then he says it arouses feelings of pity and fear and then purges these feelings through catharsis. Okay. So anything to explain here or should I move? Yes, sir. Okay. Kill him. Okay, now 6 components. Okay, 7 characters, याद रखिएगा। characteristics are 7 and then there are 6 components. प्लॉट के बारे में उन्होंने कहा है कि ये यूनिफाइड होल है, मतलब पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको अगर आप यूनिफाई करेंगे तब प्लॉट बनेगा। एंड इट मस्ट हैव अ बिगिनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड। द सेकेंड कंपोनेंट इज करेक्टर। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि विच इज ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विच इज ऑफ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। सो जो पहला वाला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट वाला लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ऐसा भी होता है कि इनको दे देते हैं इन जम्बल्ड ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, यू नो, रेंजिंग फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द लीस्ट इम्पॉर्टेंट और रेंजिंग फ्रॉम द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इनका सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस कई बार पूछते हैं एग्जाम में। तो करेक्टर, क्योंकि हमने पहली बात की थी ट्रेजेडी किसकी बात करती है? लॉफ्टी मैटर्स की, डिग्निफाइड मैटर्स की बात करती है। तो द हीरो मस्ट हैव गुड क्वालिटीज। हीरो के अंदर अगर गुड क्वालिटीज नहीं होंगी तो वो डिग्निफाइड मैटर की बात नहीं हो पाएगी उसमें, ठीक है।
and should be portrayed realistically and consistently. रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब केवल इमेजिनेटरी नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। मतलब आज आजकल जो ड्रामा लिखे जा रहे हैं या इसमें मॉडर्न टाइम में जो भी ड्रामा लिखे गए, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे हीरोज मिलेंगे जो कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, ठीक है आपको। ओके, द थर्ड वन इज थॉट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल प्रोसेस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड ऑफ द वैल्यूज एंड आइडियाज। जो थॉट्स की बात होगी, डायलॉग्स की बात होगी, फिलोसॉफिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू की बात होगी, उसमें रैशनैलिटी हो, लॉजिक हो। ऐसे नहीं कि जैसे उसमें आपने देख इसको जो एब्सर्ड थिएटर है, ठीक है, तो उसमें कई बार कुछ पता ही नहीं है वो व्हाई आर दे वेटिंग फॉर गोडो, दे डू नॉट नो, देयर इज नो रैशनल बिहाइंड इट, राइट। लेकिन अरिस्टोटल कहते हैं कि इट मस्ट हैव रैशनैलिटी बिहाइंड इट। इनफैक्ट बेकेट से जब ये पूछा गया कि अच्छा बताओ गोडो था कौन, तो बेकेट बोलते अगर मुझे पता होता तो मैं लिखे नहीं देता वहाँ पे, ठीक है। ओके, देन द थर्ड वन इज डिक्शन। बाय डिक्शन ही मीन्स फोनीम, सिलेबल, कंजंक्शन, कनेक्टिव, नाउन, वर्ब, इन्फ्लेक्शन एंड अटरेंस। ये याद रखना पड़ेगा कि डिक्शन में उन्होंने किन किन चीज़ों की बात की है। नाउ प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी टर्म विच यू डू नॉट नो। देयर आर मैनी, सब जानते हैं सारे? फोनीम जानते हैं? यस और नो? सर ओनली इन्फ्लेक्शन। आपको केवल इन्फ्लेक्शन पता नहीं है? यस सर। ठीक है, अच्छा फोनीम क्या होता है जल्दी बताइए, सो दैट वी कैन रिवाइज दीज थिंग्स। It's related to sounds. Of course it's related to sound. Okay, if I say अभी इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, क्या नाम, यूपीएचसीएससी का, उसमें एक वर्ड आया था सम, SOME, और उसमें पूछा गया था हाउ मेनी फोनीम्स आर देयर इन दिस वर्ड। बताइए कितने फोनीम्स हैं? Jagrati, are you here? There are three phonemes in this word. Okay, sa, a and ma. किसी वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करते हैं ना, तो उसमें जितने साउंड्स निकलते हैं वो सारे फोनीम्स होते हैं, ठीक। अगर हम जैसे डिक्शन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, डा, ई, का, शा एंड ना, ये सारे उसके फोनीम हैं, ठीक। सिलेबल क्या होता है बताइए? Syllable is the smallest unbreakable unit of a spoken word. ओके, तो अगर हम कहें टेबल, तो इस वर्ड को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टे एंड बल। सो टे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सो टे इज अ सिलेबल। ओके, नाउ कंजंक्शन, कनेक्टिव, नाउन, वर्ब आप जानते हैं। इन्फ्लेक्शन क्या होता है? यू नो, when a word inflects or when a word changes its form for the sake of grammar, okay, or for the sake of agreement, okay, जैसे मैं बोलूँ राधा मार्केट जाएगी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. अगर मैं बोलूँ राधा मार्केट जाएगी, ठीक है, नाउ रिप्लेस राधा बाई राजू, फिर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राजू मार्केट जाएगा। तो ये जाएगा इज चेंजिंग इट्स फॉर्म इनटू जाएगी व्हेन द सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय फीमेल जेंडर, राइट। इसी टाइप से इंग्लिश में क्या होता है, ही गोज बट दे गो, सो दिस गो is changing its form when the subject is changed from plural to singular. तो ये verb go क्या हो रही है, it is inflecting.
प्ले बिकम्स प्लेड इन द पास्ट टेंस, सो इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेक्शन हो रहा है। आगे बात समझ में, प्लूरल बनाने के लिए फ्रॉम चाइल्ड टू चिल्ड्रन, तो अपना फॉर्म बदल रहा है, ठीक है, फ्रॉम बॉय टू बॉयज, तो ये किसके लिए, ग्रामर के लिए या एग्रीमेंट के लिए अपना फॉर्म वो चेंज कर रहा है वर्ड, सो दैट इज व्हाट वी नो एज इन्फ्लेक्शन। ओके, देन मेलोडी, मेलोडी ऑफ कोर्स यू नो आई बिलीव म्यूजिकल एलिमेंट्स, ठीक है, एंड स्पेक्टिकल इज सेंसरी इफेक्ट्स है, उसने Sorry, sir, to step two, yes but yes please tell me about a trend. sorry, a trance, Sir, what the a trance is the a trance is the discourse, हम क्या कर रहे हैं, हम यू नो वी आर प्रोड्यूसिंग अ ट्रेंड्स एट दिस प्रेजेंट टाइम, जो डायलॉग्स है, स्टेटमेंट्स हैं, जो भी डिस्कोर्स है ना, वो पूरा ट्रेंड्स होता है। conversation? हाँ राइट। स्पेक्टिकल, सेंसरी इफेक्ट्स, मतलब उसने कैसे कपड़े पहने हैं, अब अगर किसी को रोल प्ले करना है क्लाउन का और वो किंग वाले कपड़े पहन लेगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना, तो सुटेबल कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, सेंसरी इफेक्ट्स भी सुटेबल होने चाहिए। मतलब अब उसने मैकबेथ को, मैकबेथ प्ले सभी ने पढ़ा है आई बिलीव, तो उसमें स्टार्टिंग से ही विचेज की बात की गई है। अब बात कर रहे हैं दैट विचेज यू नो आर गोइंग टू मीट मैकबेथ इज गोइंग टू मीट विचेज, राइट, और विचेज यू नो विचेज आर देयर and you have very you know beautiful scenic atmosphere, 3 witches are there और atmosphere कैसा है, beautiful है बहुत, तो मैच नहीं करेगा उससे, राइट। जेस्चर्स, जेस्चर्स मतलब they must be suitable, right, the sound of the music and resonance of the actors voices, resonance कैसा होना चाहिए, मतलब अगर कोई एक्टर गुस्से में बोल रहा है और उसके जो वर्ड्स है ना उसमें उतना एंगर शो नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब वो रेजोनेंस इज नॉट मैचिंग विद द डायलॉग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट, now there are some key terms which are of Latin and examination sometimes you know these things are asked, तो mimesis इमिटेशन के लिए या रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन, ह्यूब्रिस का यूज किया उन्होंने प्राइड के लिए, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, नेमेसिस रिट्रीब्यूशन के लिए, देन हमार्टिया मिस कैलकुलेशन और ट्रेजिक फ्लॉ, इसको रोमांटिसिज्म में इसको ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं, ठीक है, अदरवाइज इट वाज यू नो एक्सप्लेन्ड एज और अंडरस्टूड एज मिस कैलकुलेशन। सॉरी, एनाग्नोसिस विच इज रिकॉग्निशन और identification, peripetia is reversal of fortune, catharsis purgation, purification, right, और प्लॉट के लिए टर्म आता है मिथोज, जो इन्होंने चैप्टर 6 में एक्सप्लिसिटली उसको एक्सप्लेन किया है एज स्ट्रक्चर ऑफ एक्शंस, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिथोज को का दूसरा नाम प्लॉट है, इंग्लिश में उसको प्लॉट बोलेंगे, और चैप्टर 6 में इसको उन्होंने बोला है स्ट्रक्चर ऑफ एक्शंस। प्लॉट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एक्शंस। ओके, देन इथोज इज करेक्टर, मिथोज इज प्लॉट, इथोज इज करेक्टर, मिथोज इज प्लॉट, इथोज इज करेक्टर, ठीक है। डायनोइया क्या है? थॉट और थीम। लेक्सिस इज डिक्शन और स्पीच। मेलोज इज मेलोडी। Please do not get confused with mythos and melodies. Mythos is plot and melos is melody. Okay. Opsis is for spectacle, and which is the least important component of a tragedy. What is the most important component of a tragedy? That is mythos or plot. Then lucis, which means untying the plot, and decis is tying the plot. Okay. इसके अलावा दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेजेडी, पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो उन्होंने बोला है कि यू नो प्रोलोग होता है, उसमें एपिसोड होता है, एक्सोड होता है और कोरिक सॉन्ग्स होते हैं। सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो प्रोलोग क्या है? दैट एंटायर पार्ट ऑफ ए ट्रेजेडी विच प्रीसीड्स द पैरोड ऑफ द कोरस, ठीक है।
जो पैरोड को प्रोसीड कर रहा है, कोरस के पैरोड को, अभी पैरोड की भी बात करेंगे, वो होता है प्रोलोग। एपिसोड क्या है? दैट एंटायर पार्ट ऑफ ए ट्रेजेडी विच इज बिटवीन कंप्लीट कोरिक सॉन्ग्स, ठीक है, तो ये बीच में होता है कोरिक सॉन्ग्स के। एक्सोड इज द एंटायर पार्ट ऑफ ए ट्रेजेडी विच हैज नो कोरिक सॉन्ग आफ्टर इट, ये याद रखिएगा। एपिसोड कोरिक सॉन्ग्स के बीच में होगा, एक्सोड के बाद में कोई कोरिक सॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। और प्रोलोग क्या होता है? प्रीसीड्स द पैरोड ऑफ कोरस, कोरस से पहले प्रोलोग, कोरस के बीच में एपिसोड, और एक्सोड के बाद में कोई भी कोरस नहीं होगा। शुड आई रिपीट इट? कोरस से पहले प्रोलोग, कोरस के बीच में एपिसोड, और एक्सोड के बाद में कोई भी कोरिक सॉन्ग नहीं होता है। देन ऑफ द कोरिक पार्ट द पैरोड इज द फर्स्ट अनडिवाइडेड अटरेंस ऑफ द कोरस, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द फर्स्ट अनडिवाइडेड अटरेंस ऑफ द कोरस? दैट इज द पैरोड। पहला अटरेंस जो होता है कोरस का उसको पैरोड बोलते हैं, ठीक है। देन द स्टेसिमन is a choric ode without anapest और trochaic tetrameters। ये भी एग्जाम में आता है कि ये स्टेसिमन का क्या होता है, ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा आपको ये। और ये अनापिस्टिक और ट्रोकेक जो मीटर्स हैं, ये जब पोट्री और ये आपको रेटरिक पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में इस पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर पार्ट विच इज कॉल्ड द कोमोज। इट इज ए जॉइंट लैमेंटेशन ऑफ कोरस एंड एक्टर्स। कोरस और एक्टर्स जब एक साथ लेमेंट करते हैं किसी ट्रेजेडी पर, तो इट बिकम्स द कोमोज। ऑलराइट। इसके अलावा कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आपका हो सकता है उसमें नहीं आएगा, लेकिन जीएस पार्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ट्रेजेडी के बारे में। उन्होंने एक थियरी दी थी, अरिस्टोटल ने ही, थियरी ऑफ गोल्डन मीन। इट्स नॉट रिलेटेड टू ट्रेजेडी, प्लीज टू रिमेंबर, इट्स नॉट रिलेटेड टू पोइटिक्स, ठीक है। ये एक बार जीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो थियरी ऑफ गोल्डन मीन, या कभी कभी ऐसे भी दे देंगे कि चलो भाई कौन सी थियरी किसने दी है, वो आपके इंग्लिश में भी आ सकती है। जैसे मान लो प्लेटो ने कोई थियरी दी, ठीक है, कोई अरिस्टोटल ने दी, कोई नीत्शे ने दी, तो उसमें उन्होंने डाल दिया द थियरी ऑफ गोल्डन मीन, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी बात कही थी कि एक्सट्रीम्स पर नहीं जाना चाहिए इंसान को। अगर उसको हैप्पीनेस चाहिए तो एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि उनका एक प्ले है गाल्सवर्दी का स्ट्राइफ। स्ट्राइफ पढ़ा है आप लोगों ने? स्ट्राइफ में एक एंथनी होता है और एक रॉबर्ट होता है। तो वो स्ट्राइक चल रही होती है, तो जो भी उनकी डिमांड्स हैं वर्कर्स की, वो मानने को तैयार नहीं है, और रॉबर्ट्स भी किसी भी डिमांड को कम करने वाला नहीं है। तो दोनों एक्सट्रीम्स पे चले गए हैं। तो वहाँ पर राइटर कहता है, वो जो प्ले राइट है उसने कहा है कि अगर दोनों थोड़ा थोड़ा झुक जाए तो सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो लगभग इसी की बात की उन्होंने। मीन, गोल्डन मीन क्या है कि मतलब आपको दोनों स्ट्रीम्स पर नहीं जाना है, ठीक है। आपको अपने रीजन से, अपनी लॉजिक से बीच का रास्ता अपनाना है। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग, दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। जैसे कि इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन, रैशनेस इज नॉट गुड, कोवर्डाइस इज ऑल्सो नॉट गुड। तो बीच का रास्ता क्या है? ना तो आप रैश हो सकते हैं, ना आप कॉवर्ड हो सकते हैं। तो बीच का रास्ता क्या है? करेज। करेज इज द बेस्ट थिंग टू हैव इन समबडीज लाइफ, ठीक है। तो ये मीन है, बीच का रास्ता है। तो दिस इज व्हाट कॉल एज गोल्डन मीन, ठीक है। अब थोड़ा क्योंकि प्लेटो से रिलेटेड है अरिस्टोटल, तो एक दो बातें प्लेटो के बारे में है। और प्लेटो की एक एलेगरी ऑफ केव, वो एग्जाम में आती है, ठीक है। प्लेटो ने वर्चू के 4 कंपोनेंट्स की बात की है। दे आर विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। ये याद रखना पड़ेगा, विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। और प्लेटो ने ह्यूमन सोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, रीजन, स्पिरिट एंड एपिटाइट। इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द ट्रू ऑर्डर, स्पिरिट पहले आता है कि रीजन पहले आता है कि एपिटाइट पहले आता है, ठीक है। तो जम्बल्ड मतलब वे में उसने दिया हुआ था,
एंड ट्रू ऑर्डर उसका पूछा हुआ था. सो इट्स रीजन at the first position, then spirit at the second position, and epithet at the third position. Then thank you. If you have any doubt, any question, you can ask. No, sir, thank you. You are welcome. So okay, then I'll share that link with you right now in that group, where you can read all the chapters in detail. I mean their summary. Okay, तो उसमें आप लोग एक बात जरूर याद रखिएगा जब उसको पढ़िएगा, कौन सा टर्म कौन से चैप्टर में यूज किया है वो जरूर आप लिख लीजिएगा. ठीक है. ओके देन, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.